اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آٹے کا حصول ڈراونا خواب بننے لگا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں آٹا تقریباً 2 گنا مہنگا ہو گیا۔ 648 روپے کا 10 کلو کا تھیلا 1158 روپے کا ہو گیا۔ پرانی گندم کی قیمت 2300 کی بجائے 3900 روپے کر دی گئی۔ دوسری جانب سستا آٹا اسکیم میں بھی عوام ذلیل و خوار ہونے لگے ہیں۔ بنیادی ترین ضرورت آٹے کا حصول ڈراونا خواب بننے لگا۔ ایک جانب تو رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کے حصول میں شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا ہے، تو دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 2 گنا مہنگا کر دیا گیا۔ 648 روپے کا 10 کلو کا تھیلا اب 1158 روپے کا ملے گا۔ محکمہ خوراک کی جانب سے ملوں کو پرانی گندم نئے ریٹ پر ملنے لگی۔ قیمت 2300 کی بجائے 3900 روپے کر دی گئی۔ فری آٹے کی تقسیم کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ سرکاری سطح پر 10 ارب سے زائد کا اضافی بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مفت آٹے کے حصول میں شدید ذلت و خواری کا سامنا ہے۔ اب آزار ہو گئی ہے عوام مہنگائی سے، اوپر سے آٹا کر دیا 1150 روپے کا تھیلا، 1160 روپے کا جو 650 کا تھا۔ لائن میں لگے ہوئے اخبار ہو رہے ہیں ایک تھیلے کے لیے، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ لائن میں لگے ہوئے۔ عام طور پر نئی گندم کی پریکیورمنٹ کے بعد ہی نئی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن اب کی بار پرانی گندم پر نئے ریٹ لاگو کر کے صوبے کی عوام پر اربوں روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ کیمرامین محمد بلال کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ خبر شامل کریں، مفت آٹے کی پرامن تقسیم کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ کمشنر لاہور نے تمام وسائل بروئے کار لانے کا حکم دے دیا ہے۔ آٹے کے ٹرک کھلی محفوظ مقام پر کھڑے کیے جائیں۔ ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کا مختلف سینٹرز کا دورہ، آٹا تقسیم کے عمل کا معائنہ کیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس، ڈی سی لاہور عافیہ حیدر، ایڈیشنل کمشنرز اور اے سی کی شرکت۔ اجلاس میں آٹے کی مفت فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ شہریوں کی آسانی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں۔ افسران ہر سیل پوائنٹ کو خود چیک کریں، آٹا سہولت سینٹرز میں نشست گاہوں اور پینے کا پانی فراہم کریں۔ آٹے کے ٹرک کھلی، محفوظ اور شہریوں کی سہولت کے لیے مقام پر کھڑے کیے جائیں۔ ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کا مختلف سینٹرز کا دورہ، آٹا تقسیم کے عمل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عوام کا براہ راست فیڈ بیک لیا، لوگوں کے انتظامات کی تعریف کی۔ ڈی سی لاہور نے تمام تر 40 پوائنٹس کے فوکل پرسن اور ان کے موبائل نمبر بھی جاری کر دیے۔ انتظامیہ یا عوام کسی بھی شکایت کی صورت میں متعلقہ فوکل پرسن سے رابطہ کر سکیں گے۔ ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے آٹا نہ ملنا واحد مسئلہ ہے۔ شہری سینٹر پر آنے سے پہلے 8070 پر شناختی کارڈ نمبر بھیج کر اہلیت چیک کر لیں۔ ماہ سیام کی آمد مہنگائی منہ زور ہو گئی ہے۔ چٹپٹے دہی بھلے کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے۔ 300 روپے میں ملنے والے بھلے 500 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ رمضان میں پاکستان میں قیمتیں 2 گنا ہو جاتی ہیں، شہریوں کا شکوہ۔ ماہ سیام کی آمد مہنگائی منہ زور، اب افطاری کا لازمی جزو چٹپٹے دہی بھلے بھی کھانا مشکل ہو گیا۔ دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ بھلے کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں۔ گزشتہ سال رمضان میں بھلے کی قیمت 300 روپے فی کلو تھی، رواں برس بھلے کی قیمت 500 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ دیگر ممالک میں مذہبی تہواروں پر اشیاء سستی ہوتی ہیں، پاکستان میں قیمتیں 2 گنا ہو جاتی ہیں۔ پچھلے سال 300 روپے کلو تھی، اب یہ 500 روپے کلو دے رہے ہیں۔ ہر چیز کو آگ لگا دی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ لیکن ان کو چاہیے نا، رمضان مبارک برکتوں کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ انکم کے سورسز وہی ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ہم آپ نے کھانے یہ رمضان میں استعمال ہوتا ہے، ہر گھر میں یہ پکوڑیاں استعمال ہونی ہیں، اب ان کا ریٹ 300 550 600 پہ آ گیا ہے، کس طرح افورڈ کریں گے عوام سارے؟ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ بھلے سوکھے تو کھائے نہیں جاتے، دہی اور دیگر لوازمات کا خرچہ شامل کر لیں تو رمضان میں دہی بھلے کھانا آسان نہ ہوگا۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ سرکاری نرخ ناموں کے برعکس اشیاء کی مہنگے داموں فروخت ہونے لگی۔ پیاز 95 کے بجائے 110 روپے کلو میں بکنے لگا۔ سیب 300 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں 400 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ مہنگائی کے وار عوام کو ریلیف دینا خواب بن گیا۔ سبزیوں کے دام بھی عوام کی پہنچ میں نہ آ سکے۔ انتظامیہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کے لیے اقدامات بھی نہ کر سکی۔ پیاز 95 کے بجائے 110 روپے، ٹماٹر 75 کے بجائے 100 روپے کلو فروخت، لہسن چائنا 440 روپے، ادرک 720، سبز مرچ 100 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ لیمو چائنا 10 روپے مہنگے ہو کر 160 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں 180 روپے کلو میں دستیاب۔ مٹر کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ، 100 کے بجائے 120 روپے کلو بکنے لگے۔ رمضان المبارک سے قبل ہی پھلوں کی قیمتیں قوت خرید سے باہر ہو گئے۔ سیب کالا کلو 300 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں 400 روپے فروخت۔
केला दर्जा अव्वल 165 के बजाय 320 रुपए, दर्जा दोम 220 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। पपीता 220 के बजाय 280 रुपए, खजूर ईरानी 570 रुपए किलो बेची जा रही है। शहरियों का ये कहना है कि रमजान की आमद है और हर चीज महंगी हो रही है। दीगर ममालिक में रमजान में अशिया सस्ती की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाती है। जैसे रमज़ान का महीना करीब आता जाता है उस तरह महंगाई और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। स्पेशली ये जितना भी हमारा स्टॉक माफी है जो उनसे चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं रमज़ान के लिए, तो सब्ज़ी बनाना घर के लिए खांडी बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। चिकन भी गरीब आदमी से पहुँच के दूर था, लेकिन दाल भी हो गई है। चावल जो है ना वो भी बहुत महंगा हो गया कि 170 का आता था वो 550-600 रुपये का घी आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो कीमतें कम करते हैं लोग, यहाँ पे मुनाफाखोरी इतनी ज़्यादा है कि वो बढ़ा देते हैं हर चीज़ को। खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर होने पर ब्रायलर गोश्त 12 रुपए सस्ता होकर 519 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 230 रुपए फी दर्जन हो गए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आपको हम खबर से आगाह करें, थाना गाजियाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 7 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नूर मोहम्मद के खिलाफ बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन हैदर, बताइएगा। जो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, एसपी कैंप अवैध शफीक की हदायत पर थाना गाजियाबाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। के नतीजे में पुलिस एहलकार ने 15 की कॉल पर फौरी एक्शन लेते हुए 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम जो है, इसका नाम नूर मोहम्मद के नाम से शनाख्त की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ गाजियाबाद ने बताया है कि बच्ची बाहर गली में खेल रही थी कि मुलजिम बच्ची को बरगला के खाली प्लॉट में ज्यादती की कोशिश की और बच्ची के वालिद मोहम्मद रफीक की मुद्दत में जो है मुलजिम के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और एसपी कैंट अवैध शफीक का मजीद कहना था कि बच्चों का जिनसी इस्तेमाल करने वालों को कैसे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, अपने खिलाफ किसी किस्म का जो है वो नहीं रखा जाएगा। जी, 7 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मुबीन इस तफसील का। ज़मान पार्क में पीटीआई कारकुनों की तादाद बढ़ने लगी है। ज़मान पार्क के बाहर कैंप फिर से बहाल होने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? तो ज़मान पार्क के बाहर और आज कशीदा दिनों के बाद ज़मान पार्क जो है सूरत हाल वहाँ पर यहाँ पर अमन अमान किया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कैंप्स जो कि उखाड़े जा चुके थे अब फिर से दोबारा बहाल होने लगे हैं। और इमरान खान के घर के जो गिर्द सिक्योरिटी हिसार था जिसको तबाह कर दिया गया था वो भी दोबारा जो है बहाल कर लिया गया है। इमरान खान के घर के आगे जो है वो प्रॉपर शटरिंग कर दी गई है और जो दरवाज़ा इमरान खान के घर का तोड़ा गया था उसको शटर लगाकर सील कर दिया गया है। उसके अलावा पीटीआई कारकुनान जो हैं उनकी सिक्योरिटी जो है इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है, जो हर गुजरने वाले शख्स को चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ दिन कबल जो है वो इमरान खान के घर तक रसाई किसी की भी मुमकिन नहीं थी। लेकिन क्योंकि बैरियर जो हैं वो पुलिस की जानिब से सारे उखाड़े जा चुके हैं, इस वजह से अब जो भी है वो शख्स इमरान खान के घर के आगे तक पहुंच सकता है। इसलिए पीटीआई कारकुनान अपनी मदद आप के तहत जो है वो हर गुजरने वाले शख्स की चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ज़मान पार्क जाने वाले इमरान खान के घर जाने वाले रास्तों की, तो जो गेट नंबर 1 है उसको कंटेनर लगाकर प्रॉपर सील कर दिया गया है। यहाँ से किसी भी गाड़ी की आमदोरफ्त जो है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और जो गेट नंबर 2 है उसको खुला छोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है पीटीआई रहनुमा और पीटीआई कारकुनों की आमदोरफ्त जो है वो गेट नंबर 2 से करवाई जा रही है। उसके अलावा अगर मैं ट्रैफिक सूरत की बात करूँ तो ट्रैफिक आज भी कैंप उखाड़े जाने के बाद भी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले कारकुनान की गाड़ियों का रश है। और उसके अलावा जो कंटेनर्स लगाए गए हैं जिससे इमरान खान के घर को सील किया गया है सिक्योरिटी के लिए कारकुनान की जानिब से, वो भी सड़क के ऊपर मौजूद हैं, जिस वजह से जो ट्रैफिक है वो खासी सुस्त रवि का शिकार है। अलबत्ता ट्रैफिक जो है वो रवा दवा ज़रूर है। जो हालात आज से 3 से 4 दिन पहले थे जिसमें सिर्फ ट्रैफिक की जो है वो एक लाइन चलती थी, आज ट्रैफिक की जो है वो 2 लाइनें रवा दवा हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस वक्त यहाँ के जो फ़िज़ा है उसकी, तो यहाँ पर कारकुनान जो है उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। जो पीटीआई कारकुनान है, डंडा बरदार पीटीआई की फोर्सेस हैं, उनका आज भी अभी भी यही कहना है कि जान देंगे लेकिन खान नहीं देंगे। कारकुनान का आज भी ये कहना है कि हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई तो गुज़रे 2 दिन जो हम पर तशद्दुद किया गया उसका अमल दरामद जो है वो सारी कौम देख चुकी है। जी अच्छा हमजा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि ज़मान पार्क के कैंप के बाहर पीटीआई कारकुनों की कितनी तादाद मौजूद है और पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या होगा?
जी इस वक्त जो है यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 कारकुनान मौजूद हैं, जिसमें ज़्यादातर वो हैं जो डंडा बरदार हैं और जो ख़ासे गुस्से में नज़र आते हैं। जब इमरान खान के इस्लामाबाद रवानगी के बाद यहाँ पर जो है वो हशर किया गया इस जगह का, उस वजह से ख़ासे गुस्से में हैं, जिनका बार बार यही कहना है कि अगर अब हम पर कोई हमला किया गया या हमें उकसाने की कोशिश की गई तो हम फिर उसका पूरा जवाब देंगे। अगर मैं रद्द अमल की बात करूँ तो PTI ने जो है वो 22 तारीख को जो है 22 मार्च को जो है वो जलसे की कॉल दी हुई है मीनार पाकिस्तान में। अलबत्ता अभी तक उसकी इजाज़त का जो है वो सिलसिला चल रहा है। उसके अलावा PTI रहनुमाओं के जो है वो घरों पर अभी भी पुलिस की जानिब से जो है वो धावे बोले जा रहे हैं। हमजा ये बताइएगा कि कारकुनों का तो यही कहना है, और लेकिन दूसरी जानिब बात की जाए तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है मोहसिन नकवी की, उन्होंने भी यही कहा कि IG को फ्री हैंड दे दिए गए हैं कि जो भी हाथ बढ़ाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। ये भी कहना है मोहसिन नकवी का। देखिए जो वज़ीर आला साहब का कहना था वो तो बिल्कुल ठीक था, उन्होंने पुलिस को इजाज़त दे दी, लेकिन अब ये भी अगर सूरत-ए-हाल मद्देनज़र रखी जाए कि जो यहाँ पर आवाम मौजूद थी वो भी पुरअमन थी, और जब पुलिस की तरफ से जानिब से शेलिंग शुरू हुई तो यहाँ पर भी आवाम जो है मुश्तइल होना शुरू हुई और वो हालात मज़ीद बिगड़े। तो अगर यहाँ पर जो पुलिस अगर उसको फ्री हैंड दे दिया गया और उन्होंने अगर कोई कोशिश ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद, आप आगाह कर रहे थे। ज़मान पार्क में PTI कारकुनों की तादाद बढ़ने लगी है। ज़मान पार्क के बाहर कैंप फिर से बहाल होने लगे हैं। आगे बढ़ आपको बताएं, ज़ेरे हिरासत तहरीक इंसाफ के 103 कारकुनों को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कैंप जेल में जगह न होने के बायस कारकुनों को कोट लखपत मुंतकिल किया गया है। लाहौर की दोनों जेलों में पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा कैदी बंद हैं। आपको अहम खबर से आगाह जो है वो किया जा रहा है कि ज़ेरे हिरासत तहरीक इंसाफ के 103 कारकुनों को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कैंप जेल में जगह न होने के बायस कारकुनों को कोट लखपत मुंतकिल किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं मुल्क में आइन और कानून पर कोई अमल नहीं हो रहा, तमाम झूठे केसेस मुझे कत्ल करने के लिए बनाए गए। चीफ जस्टिस साहब देखें, मेरी पेशी पर नामालूम अफराद अदालत के अंदर क्यों आए। बुध को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त देकर अब रोका जा रहा है। ये इलेक्शन कराने नहीं, मुझे ख़त्म करने आए हैं। मरियम नवाज़ ऐसे फिरती हैं जैसे ये मुल्क उनकी जागीर हो। ज़मान पार्क से वीडियो लिंक पर खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ वो किया जो आज तक तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। कल अदालत के सामने अपने आप को पेश करने जा रहा था। ये किस लिए आए थे? नामालूम अफराद सफ़ेद कपड़ों में थे। मेरे कुलीग ने मुझे इशारा किया कि बाहर निकलें। मैं समझ गया था कि ये ट्रैप था। मैंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर गाड़ी निकलवा दी। नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में, और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। तो तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर? क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था, ये मुझे मारने की साजिश थी, ये ट्रैप था। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कराने नहीं, मुझे खत्म करने आए हैं। PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। बुध को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देकर अब रोका जा रहा है। अब ये जेल भी नहीं भेजना चाहते, मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ये जो मर्जी कर लें, अब ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। जेल तो मैं सोचा था कि मैं जेल में चला जाऊं। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। हम तशद्दुद के शवाहिद इकट्ठे करके यूरोपीय यूनियन को भिजवा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है कि मामले का नोटिस लें। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने दावा किया है कि हुकूमत बहुत जल्द मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ी रखने वालों को कम अज़ कम 100 रुपये फ़ी लीटर सस्ता पेट्रोल फराहम करेगी। अमीर का पाकिस्तान अलग और गरीब का पाकिस्तान अलग कर दिया है। मरियम नवाज़ के हवाले से साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात होनी चाहिए। तफसीलात राहील अली की रिपोर्ट में। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने गरीब आवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं अमीर को पेट्रोल महंगा मिलेगा और उन्हीं पैसों से गरीब को सस्ता पेट्रोल देंगे। एक मोटरसाइकिल रखने वाले को माहाना 21 लीटर और छोटी गाड़ी वाले को 30 लीटर सस्ता पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल की कीमत कम कर दी है वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई के मुताबिक तमाम मोटरसाइकिल सवार लोगों की सवारी, उनकी कीमत तेल की कम कर दी जाएगी। और हमें बहुत थोड़ा वक्त दिया है
वक्त वज़ीर आज़म ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 हफ्ते उन्होंने दिए हैं। वज़ीर ममलुकत बराए पेट्रोलियम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर खूब गर्जे बरसे। बोले, एक आला तरीन ओहदे पर रहने वाला शख्स कैसी गुफ्तगू कर रहा है। मुबैना ऑडियो की तहकीकात और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोई है इस मुल्क में जिसको नहीं पता कि मियाँ साकिब निसार मुबैना तौर पे किस औरत की बात कर रहे हैं? मैं ये मिनिस्टर इंटीरियर से भी कहूँगा और होम मिनिस्टर से भी कहूँगा कि इसका नोटिस लिया जाए। अगर ये कातिलाना मुबैना टेप है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हर एक को हक है अपना दिफा करे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि इमरान खान भी कानून को नहीं मानते, वो खुद को ताकतवर समझते हैं, तो इन पर गरीबों वाले कवानीन कैसे लागू हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ज़मान पाक के एतराफ़ में पुलिस पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहते हैं पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, अब हुकूमती रिट नज़र आएगी। गुज़श्ता दिनों के वाक़यात पर ज़िम्मेदारों के तयन के लिए JIT बनाने का भी ऐलान कर दिया। ऐवान वज़ीर आला में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्द कार्रवाइयों के जिम्मेदारों के तयन के लिए JIT बनाने का ऐलान किया और कहा कि पुलिस पर तशद्दुद के जवाब के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, अब हुकूमती रिट नजर आएगी। पुलिस की तरफ उठने वाले हाथ तोड़ देंगे। 2 बार पुलिस और रेंजर्स इमरान खान के घर के अंदर पहुंची, लेकिन अंदर मुसल्लह अफराद थे। मैंने पुलिस को ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया ताकि खून खराबा न हो। बहुत ज़रूरी है कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए और उसको बताया जाए कि एक गवर्नमेंट भी मौजूद है, एक स्टेट भी मौजूद है। जब पुलिस वहाँ पे थी, वो आगे जाना चाह रही थी, लेकिन उनको पता था सामने वेपन्स वाले भी खड़े हुए हैं, उनको सामने सारी इन्फॉर्मेशन थी, उनके पास ड्रोन की फुटेज भी थी, सब कुछ मौजूद था। दोनों टाइमों में मैंने उनको कहा नहीं, आप लोग वापस आ जाएं। मैंने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली। उसकी वजह ये है कि मैं किसी सूरत नहीं चाहता था कि कोई खून खराबा हो। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि सियासी सरगर्मी हर जमात का हक है, जिसने जलसा करना है करे। इमरान खान पुलिस को धमकियां दे रहे हैं, अगर पुलिस पर एतमाद नहीं तो पुलिस सिक्योरिटी भी वापस कर दें। इमरान खान पुलिस पर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इमरान खान साहब ने कल भी पुलिस वालों को थ्रेट किया है। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कभी IG, कभी CCPO, कभी तीसरा नाम, कभी चौथा नाम। अगर उनको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है तो वो बराए मेहरबानी जो सिक्योरिटी पुलिस ने दी हुई है उसको वापस भिजवा दें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का रिकॉर्ड भेज रहे हैं। पुलिस और निगरान हुकूमत सिर्फ अदालती अहकामात पर अमल कराने जाती है। रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत में तोसी कर रहे हैं, जबकि तशद्दुद में कम जख्मी एहलकारों को 1 लाख और तशद्दुद जख्मी एहलकारों को 5 लाख रुपए की इमदाद भी दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, हर रोज़ हम पर केस किए जा रहे हैं, हमारे कारकुनों को नाजायज़ पकड़ा जा रहा है। हम फौज और आर्मी चीफ से तवक्को करते हैं कि शफाफ इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करें। सेशन कोर्ट में अबूरी जमानत में पेशी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की हुकूमत आग से खेल रही है। मोहसिन नकवी को मशवरा है कि अपने अल्फाज में तवाज़ुन लाएं। निगरान वज़ीर आला और IG के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। अपने अल्फाज को बड़ी मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें। अल्फाज जो हैं वो बड़े ज़ालिम होते हैं, एक दफ़ा अल्फाज जो हैं वो निकल जाएँ तो फिर उससे बड़े मसाइल पैदा होंगे। लिहाजा आप पहला काम ये करें कि अपने बयानात के अंदर तवाज़ुन लेके आएँ और तशद्दुद की हमायत ना करें। हसन नियाज़ी को इस्लामाबाद में जमानत के बावजूद अदालत से उठा लिया गया। इन कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं, तमाम कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। जिस तरीके से रात से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं, लाहौर के अंदर 46 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ ज़ाहिर कर दी गई हैं और अभी दर्जनों और हैं जिनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की गई। यही हाल इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में हमारे लॉयर्स विंग के हर दिल अजीज़ रहनुमा हसन नियाज़ी साहब को जमानत के बावजूद अदालत के अहाते से उठा लिया गया। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 1 अप्रैल तक तौसी कर दी।